all of you in today's class. Today we will start the new chapter, metal and non-metal. This chapter we have already studied this chapter in class 8 also. Now in class 10 we will study it in brief. First of all, what is metal and what is non-metal? Metal क्या है, non-metal क्या है, इसको हम लोग जानेंगे. Now what is metal and non-metal? We will try to understand this by the difference. First is metal. Metal क्या है? What is metal? Metals are those which have 1, 2 and 3 electrons in their outermost shell. Those which have 1, 2 and 3 electrons in their outermost shell. Outermost shell. Outermost means valence shell, last cell. As we know that in chemistry, 4 cells are present: Kl, M and N cell. So suppose for example in sodium has 11 atomic number. It consists 11 electrons. So its electronic distribution will be 2, 8 and 1. So in last cell, it is K cell, L cell and M cell. In last cell, it contains 1 electron. It is the last cell. So it contains 1 electron. So it is metal. Because metals are those which have 1, 2 and 3 electron. It contains 1, so it is a metal. In another example, we take magnesium. It has 12 atomic number. 12 electron is present. So its electronic distribution will be 2, 8 and 2. So it has 2 electron in its outermost shell. So it is also metal because it has 2 electron. Similarly, in aluminium has 3 electron in their outermost shell. Now, except in chemistry there are some exception also, except hydrogen. Hydrogen has 1 electron in their outermost shell. Atomic number is 1, but hydrogen is a non-metal. It is considered as non-metal. Now in non-metal, metals have 1, 2 and 3 electrons and non-metals have 4, 5, 6 and 7 electrons in their outermost shell. Those which have 4, 5, 6 and 7 electrons in their outermost shell or valence shell. Outermost shell is also known as valence shell. Suppose for example carbon. We take carbon. Carbon has 6 electron. Atomic number is 6. So electronic distribution will be 2 and 4. 4 electron. It has 4 electron in their outermost shell. So it is non-metal because it has 4 electron. Now for example nitrogen, 7 atomic number. Its electronic distribution will be 2 and 5. So it has 5 electrons. So it is also a non-metal. Oxygen 8. Its electronic distribution will be 2 and 6. So it has 6 electron in the outermost shell. So it is also non-metal. In chlorine also. Chlorine has 7 electron in the outermost shell. So it is also non-metal. Chlorine is also considered as non-metal. Now this is the first difference. Now second difference is metals. Physical state. Physical state of metal. Generally metals are solid. मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं. मेटल्स जो है, मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है. कौन सा बॉन्डिंग है? मेटेलिक बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बॉन्डिंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है दोनों के बीच में, मेटल्स के बीच में. इसलिए मेटल्स क्या है? सॉलिड होते हैं. एक्सेप्ट, इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है. एक्सेप्ट किसको छोड़ के? मरकरी. मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है. मरकरी इज अ मेटल बट इट इज liquid. Mercury is liquid at room temperature. Room temperature पे मरकरी क्या है? एक ऐसा मेटल है जो क्या पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में. और एक और एग्जांपल हो जाएगा गैलियम. गैलियम जो है इट इज ऑल्सो मेटल बट इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट. तो ये हो गया मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. इन द पीरियोडिक टेबल generally all the maximum elements are metal. In the periodic table we know that
in this side of the periodic table, left side, right side, in the bottom side, lanthanide and actinide series, most of them are metals. And non-metal, the physical state of non-metals are exist in three states: gas, liquid, and also in solid. Mostly non-metals are gases. 11 non-metals are gases. Now gas. In gas, suppose oxygen, nitrogen, they are in gas. Liquid state, bromine is a non-metal. Bromine is a non-metal which is liquid state. And solid, carbon, phosphorus are in solid state. So this is one of the difference between the metal and non-metal physical state. Now third one is metals have luster, shining. Metals have shine, luster. Metals have luster. Luster means shine, चमकीला. किसी भी चमकीले जो है वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स. पहले आगे के जमाने में कोई भी चमकीली वस्तु दिखने को मिलता था तो हम लोग उसको क्या कहते थे? ये मेटल है. ठीक है. मेटल्स को पॉलिश करते हैं तो उसमें सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस आता है, सरफेस रिफ्लेक्ट करता है. तो मेटल्स जो है लस्टर होता है एक्सेप्ट किसको छोड़ के? लीड. लीड एक ऐसा मेटल है जो कि जिसका अपीयरेंस क्या है? लस्टरस नहीं है, डल है. लीड का जो है अपीयरेंस क्या है? डल होता है. नेक्स्ट है नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस. इसका डल होता है एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट जो है नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स जो है उसमें कौन सा नॉन मेटल्स है जिसका एक डल अपीयरेंस नहीं होता है? एक्सेप्ट जो हो जाएगा आयोडीन, आयोडीन एंड डायमंड. आयोडीन एंड डायमंड. आयोडीन और डायमंड जो है ये नॉन मेटल्स है लेकिन ये डल नहीं होता है, शाइन करता है. ठीक है. नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे कि मेटल्स जो है वो हार्ड होता है. मेटल्स आर हार्ड. फोर्थ नंबर में मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम पोटेशियम जो है एक ऐसा मेटल है जो कि क्या? सॉफ्ट होता है. सोडियम पोटेशियम को हम लोग इजीली नाइफ के द्वारा कट कर सकते हैं. और इधर जो हो जाएगा नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड जो है नॉन मेटल है लेकिन क्या होता है? ये हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं है. एक्सेप्ट डायमंड. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज मेटल्स जो है, फिफ्थ वन इज मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स, डक्टाइल किसको कहेंगे? व्हाट इज डक्टाइल? विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसको हम लोग तार बना सकते हैं. मेटल्स को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे फोर्स तो वो क्या होगा? टूटेगा नहीं, वो चेंज हो जाएगा, उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज कर सकते हैं हम लोग. तो मेटल्स आर डक्टाइल विच कैन बी, डक्टाइल मीन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, जिसको हम लोग तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग डक्टाइल कहेंगे. और जो है नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल होते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. तो एक डिफरेंस ये हो गया. नेक्स्ट डिफरेंस जो है, मेटल्स जो है मैलिएबल होते हैं. मेटल्स आर malleable. Malleable means we have already studied this in class 8 also. Malleable means which can be beaten into thin sheets, जिसको हम लोग शीट में चेंज कर सकते हैं. जैसे एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, उसको हम लोग पीट के हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? उसका शीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप बना सकते हैं उसको लोग. तो मेटल्स आर malleable which can be beaten into thin sheets, which can be beaten into thin sheets.
हम लोग थिन शीट में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मेटल्स को, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी क्या है, मैलिएबल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मैलिएबल है, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, ये जो है ये क्या है, नॉन मैलिएबल है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स जो है, मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा, हाई होगा, और मेटल्स का डेंसिटी भी क्या होगा, हाई होगा। तो 6 नंबर में मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा, हाई, और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक ये हो गया। नाउ 7 नंबर में क्या है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स का डेंसिटी हाई होगा, और नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स क्या है, डेंसिटी मतलब घनत्व, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो ये हो गया डेंसिटी इसका, मेटल्स का हाई होगा बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए ये क्या है, डेंसिटी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। नॉन मेटल्स का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, मेटल्स का जो आयन है, मेटल्स कैटायन फॉर्म करता है, और नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म करेगा। मेटल्स जो होगा, मेटल्स लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो लूज करेगा। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। कैटायन किसको कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहेंगे। तो मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा टू फॉर्म कैटायन, ये कैटायन बनेगा पॉजिटिवली चार्ज आयन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे सोडियम है, ये सोडियम है, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 11, एटॉमिक नंबर 11 है। तो ये सोडियम जो है ये क्या करता है, ये पॉजिटिव बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सोडियम का, 2, 8 and 1 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसका ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, पॉजिटिव है। अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहता तो 2 लूज करता, 3 रहता तो 3 लूज करता। तो ये सोडियम हो गया। उसी तरह मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम में 12 है, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 12 है इसका मैग्नीशियम का, 2, 8 and 2 होता है इसका मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या करेगा, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेटल्स का। और नॉन मेटल्स जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। एनायन मीन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ये हो गया एनायन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम लोग क्या कहेंगे, एनायन कहते हैं। तो ये गेन करता है और ये क्या करेगा, लूज करता है। मेटल्स लूज करेगा, नॉन मेटल्स गेन करता है। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और क्या बनाएगा, O2 माइनस। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करके क्या करेगा, ये 2 माइनस बनाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि इसका 2 and 6 है ऑक्सीजन का। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 and 6 है। तो इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो ये नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर।
मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इसका नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. पॉजिटिव आयन बनाएगा, मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, और नॉन मेटल्स क्या बनाएगा? नेगेटिव आयन. तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोनेगेटिव in nature. So ये जो है, these are the some points, these are the some differences between the metal and non-metal. Now students, you will write these differences in your copy. That's all for today. Next class we will discuss the chemical properties. These are the physical properties of metal. Now next class we will discuss the chemical properties of metal. Thank you.